So, good morning students. Today we will start the next preparation, that is preparation of haloalkanes by using HBr, addition of HBr to unsymmetrical alkenes in the presence of a peroxide. So, next method of preparation is addition of HBr in the presence of peroxide. In the presence of peroxide to unsymmetrical alkenes. To unsymmetrical alkenes. So here I am taking the example of a unsymmetrical alkene. यहाँ पे मैं example ले रहा हूँ unsymmetrical alkene का, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH double bond CH2. This alkene is prop 1-ene. कौन सी alkene है ये? prop 1-ene है. अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या? HBr का एडिशन हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? peroxide की प्रेजेंस में हो रहा है. Here I have taken H2O2 hydrogen peroxide. Now during the addition of HBr to unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, what will happen? The addition will take place in accordance with anti-Marconi-Cubs rule. किस rule के accordingly addition होगा? The addition will take place in the presence of anti-Marconi-Cubs rule, and this effect is also known as what? This effect is also known as peroxide इफेक्ट. इस इफेक्ट को और क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. अब देखो एंटी मार्कोनी कब्स रूल जो है, एंटी मीन्स व्हाट? अपोजिट. सो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनी कब्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो रहा है. द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will go to that carbon atom which contain or which have greater number of hydrogen atom across the double bond. Means negative part कौन सा हुआ? Br negative will go to that carbon atom which contain what? Greater number of hydrogen atom across the double bond. Why? The positive part of the attacking reagent, that is H positive, will go to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom across the double bond. So the product will be CH3 CH2 CH2 Br, and name of the product is 1-bromo propane. 1-bromo propane. So 1-bromo propane जो है वो फॉर्म हो रही है इसके केस में. ठीक है, जो एडिशन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनी कब्स रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज एंटी मार्कोनी कब्स रूल. हियर आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ एंटी मार्कोनी कब्स रूल और peroxide इफेक्ट. सो एज पर एंटी मार्कोनी कब्स रूल द और during the addition of HBr, during the addition of HBr to an unsymmetrical alkene, the negative part of the attacking reagent, the negative part of the attacking reagent, negative part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain which contain
greater number of hydrogen atom, which contain greater number of hydrogen atoms, greater number of hydrogen atoms, hydrogen atom across the double bond. So यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे Br नेगेटिव एडिशन कहाँ पे हो रहा है, इस कार्बन एटम के पास आ रहा है, ठीक है, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. एंड एडिशन इज टेकिंग प्लेस इन अकॉर्डेंस विद विच रूल, एंटी मार्कोनी कब्स रूल. क्या बताया एंटी मार्कोनी कब्स रूल? ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr, ओनली इन केस ऑफ HBr के केस में और किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड की ही प्रेजेंस में जो है ये ऑब्जर्वेशन जो होती है. ठीक है, तो जब भी आप ये रिएक्शन देखो, पेरोक्साइड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, और किसका एडिशन है, HBr के एडिशन के केस में ये ऑब्जर्व होता है. ठीक है, सो दिस इफेक्ट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट. ठीक है, सो you can observe that what is happening, the negative part of the attacking reagent is going to that carbon atom which is containing what, lesser which is containing greater number of hydrogen atom across the double bond, while the H positive, यहाँ पे जो H positive species, that is going to that carbon atom which is containing what, lesser number of hydrogen atom across the double bond. Clear? So this effect is known as what, peroxide effect. इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, peroxide effect. And addition is taking place in accordance with what, एंटी मार्कोनी कब्स रूल. किस रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनी कब्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो रहा है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज एलिलिक हैलोजिनेशन. नेक्स्ट जो मेथड है प्रेपरेशन का, दैट इज एलिलिक हैलोजिनेशन. सो एलाइल क्लोराइड जब फॉर्म होगा इसके केस में, नाउ सी you have this alkene CH2 double bond CH CH3 and bromination is taking place in the presence at high temperature 773 Kelvin. Now see, the reaction will proceed through free radical mechanism, और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा that will be CH2 double bond CH2 double bond CH and CH2 Br along with liberation of HBr. ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें, और अगर एल्कीन है, जैसे एल्कीन यही है, हैलोजन और है CH3 plus Cl2, the reaction is taking place at 773 Kelvin, and now you can see CH2 double bond CH CH2 Cl along with formation of HCl. ठीक है, इस वे में हैलोजिनेशन जो हो रही है. सो एलिलिक हैलोजिनेशन के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो भी आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स के जो नेक्स्ट जो पोजीशन है, वहां से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगी और उसकी जगह पे क्लोरीन जो है वो अटैच होगी. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये रिएक्शन होता है. सो H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल मिलके क्या फॉर्म कर देंगे, HCl. वो देख सकते हो आप, HCl फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे HBr जो वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो एलिलिक हैलोजिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जब क्या है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. एंड बहुत बार जो रिएक्शन है वो इस तरह से भी जो रिप्रेजेंट किया जाता है. सी यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH3, एरो के ऊपर सिर्फ एक कंडीशन लिख रखी है, दैट इज NBS. यहाँ पे जो NBS है, इट स्टैंड्स फॉर N ब्रोमो सक्सिनामाइड. NBS किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इट इज स्टैंडिंग फॉर N ब्रोमो सक्सिनामाइड. ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. N ब्रोमो सक्सिनामाइड इज अ सोर्स ऑफ Br फ्री रेडिकल. ठीक है, किसका सोर्स है ये, Br फ्री रेडिकल का सोर्स है. सो अगेन हैलोजिनेशन वैसे ही होनी है, प्रोडक्ट आपके पास वैसे ही बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 Br, और साथ में जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, साथ में सक्सिनामाइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा. एंड सक्सिनामाइड का अगर फॉर्मूला देखें, देन द फॉर्मूला ऑफ सक्सिनामाइड इज, एंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं इसका, CH2 we have CO then NH. और ये जो NBS है, NBS को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करके लिख रहा हूं,
here CH2 we have CO then NBr. This compound is NBS. इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? NBS, N-ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, तो NBS की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। NBS की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये प्रोडक्ट वही बन रहा है, 1-ब्रोमो, जो भी नॉट 1-ब्रोमो, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3, यस 3-ब्रोमो प्रोप 1-ene. नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 3-ब्रोमो प्रोप 1-ene. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जो रिएक्शन है आपके पास दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, दैट इज N-ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, N-ब्रोमो सक्सिनामाइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरह से प्रोडक्ट जो वो फॉर्म होगा। सो नेक्स्ट मेथड इज प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस। सो इन केस ऑफ एल्काइंस के केस में क्या एग्जिस्ट करता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो वो एग्जिस्ट करता है। अब एल्काइन से जो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एल्काइन जो वो ले ली, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, फर्स्ट मेंबर है एल्काइंस का। तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं यहाँ पे क्लोरिनेशन कर रहा हूँ, सिन एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। इसके बाद अगर फिर से मैं Cl2 का एडिशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? नाउ CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी Cl और इस वे में प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। यू कैन नेम द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं इनका नाम आप लिख सकते हो, जैसे 1,2 डाइक्लोरो इथ 1-ene आ जाएगा, और इथेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,1,2,2 आगे आ जाएगा टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथेन। सो 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइन ली थी। अब अनसिमेट्रिकल एल्काइन के केस में हेलोजन का एडिशन जो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। नाउ हियर आई एम टेकिंग unsymmetrical alkyne CH3 C triple bond CH. The name of this alkyne is what? prop 1-ine. अब prop 1-ine में कैसे एडिशन होगा? यहाँ पे मैं हेलोजन का एडिशन कर रहा हूँ, सपोज Cl2 का ही एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे ही एडिशन की बात की जा रही है, सिन एडिशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया, किसमें? डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक हेलोजन यहाँ पे ऐड होगी, दूसरी हेलोजन यहाँ पे ऐड होगी, बट हेलोजन का एडिशन तो फर्दर हो सकता है, डबल बॉन्ड के क्रॉस भी हो सकता है एडिशन। फिर से अगर Cl2 का एडिशन हो रहा है, नाउ द डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू व्हाट? सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जब वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशन हो रहा है। ठीक है, सो क्लोरीन का अब देखो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को चेंज कर दिया किसमें? सिंगल बॉन्ड में। और जहां पे डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, अब ये बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेंगे? एक क्लोरीन के साथ फॉर्म करेंगे। सो सिंपल एडिशन जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एडिशन जो है वो हो रहा है। और नाम से क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। एडिशन मीन्स व्हाट? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेंज कर दिया सिंगल बॉन्ड में, और हेलोजन जो क्लोरीन थी वो ऐड कर दी। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट्स के नाम की बात करें, यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। सो 1, अगर इस कंपाउंड के नाम की बात करें, 3 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 1,2 देन डाई क्लोरो प्रोपेन प्रोप 1-ene प्रोप 1-ene। एंड अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके केस में क्या आ जाएगा? 1,1, 2,2 3 कार्बन एटम्स है। ठीक है, और 4 बार क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्या नाम आ जाएगा इसके केस में? टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नाम है? 1,2 डाइक्लोरो प्रोप
1 इन, और इसके केस में क्या आ रहा है 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होंगे। एल्काइंस की सिंपल क्या हो रही है, हेलोजिनेशन हो रही है, हेलोजन का एडिशन हो रहा है किसमें, एल्काइंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्काइंस। सो नेक्स्ट इज preparation from alkynes by the addition of HX। ठीक है, HX stands for what, हेलोजन एसिड। किसका एडिशन कर रहे हैं हम, हेलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं। सो अब देखो एल्काइन में आ गया मेरे पास, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें किसका एडिशन हो रहा है, जैसे मैंने HCl का एडिशन कर दिया। ठीक है, अब देखो किस वे में एडिशन होगा, यहां पे भी आप मार्कोनी कप्स रूल जब वो फॉलो करोगे। व्हाट वाज मार्कोनी कप्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस था, वहां पे डबल बॉन्ड होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया, Cl नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो Cl नेगेटिव अगर यहाँ आ रहा है तो H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड को चेंज कर दिया मैंने किसमें, डबल बॉन्ड में, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एडिशन किस तरह से होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में फिर से किसका एडिशन हो सकता है, HCl का एडिशन हो सकता है। नाउ अगेन कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा। कौन सा एडिशन मींस किस वे में एडिशन होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन व्हाट, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो नेगेटिव पार्ट दैट इज Cl नेगेटिव विल गो टू दिस कार्बन एटम, और पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, टू द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर इस प्रोडक्ट के नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। क्या नाम आ जाएगा इसके, किससे 2,2 आगे डाई क्लोरो, 3 कार्बन आइटम है तो प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये ना, 1 2 3, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी बट 2 क्लोरो देन प्रोप 1 इन। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन में दे रहा हूं, उसके केस में जो है वो आप प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो। सी एग्जांपल मैंने वही रखा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने एडिशन किया किसका, HBr का एडिशन किया। किसके अकॉर्डिंगली एडिशन होगा, मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंगली। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया किसमें, डबल बॉन्ड में। CH3 नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ गया, CBr आ गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया था, डबल बॉन्ड में आगे हाइड्रोजन एक ही थी, एक यहाँ से आई, क्या आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही रूल फॉलो करना है HBr का। नेगेटिव पार्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CBr सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब 1 2 3, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 ब्रोमो आगे प्रोप 1 इन। और इस कंपाउंड के केस में देखते हैं 1 2 3, तो क्या नाम आ जाएगा, 2,2 आगे डाई ब्रोमो आगे प्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये प्रोडक्ट्स को फॉर्म होंगे इसके केस में। बहुत इजी है। ठीक है, रूल आपको पता होना चाहिए, किस रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा। ठीक है, अगर रूल आपके माइंड में है तो फिर कोई भी रिएक्टेंट हो, जो भी आपके पास कंडीशंस दे रखे हैं, आप इजिली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी मास्टरी ऑफ रूल्स। कौन सा रूल है, कहाँ पे कौन सा रूल जो वो एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे, बार बार आपको ये रिएक्शन जो वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसी ये जो प्रीवियस रिएक्शन था अगर इसी रिएक्शन से कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसका एडिशन किया था यहाँ पे, HBr का एडिशन किया था। अब मैंने रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दी, नाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो कौन सा रूल लगता था, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट है। लेकिन के केस में भी, एल्काइन के केस में भी कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, पेरोक्साइड इफेक्ट जो लगेगा। तो रूल कौन सा था, एंटी मार्कोनी कप्स रूल। अब अगर एंटी मार्कोनी कप्स रूल आपके माइंड में है तो आप प्रोडक्ट हम वो इजिली फॉर्म कर सकते हैं। एंटी मार्कोनी कप्स रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन व्हाट, अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किसके केस में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ HBr के केस में। किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। कीप इन माइंड, HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, किसमें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन या फिर एल्काइन में, ठीक है। तब ये एंटी मार्कोनी कप्स रूल जो है वो ओबे होगा, इसके केस में अप्लाई कर सकते हो। देखो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br नेगेटिव, कहाँ जाएगा, जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को चेंज कर दिया किसमें, डबल बॉन्ड में, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एंड जो नेम है रिएक्शन का यहाँ पे स्पेसिफिकली नेम रिएक्शन है, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज फिनक्लस्टन रिएक्शन। फिनक्लस्टन रिएक्शन। So in this reaction we will use for the preparation of, specifically we will use for the preparation of alkyl iodides। किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज करेंगे हम ये रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड्स की प्रेपरेशन के लिए। अब जैसे हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से हमने क्या प्रिपेयर करना है, जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड हो सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड हो सकता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उससे हमने स्पेसिफिकली क्या प्रिपेयर करने हैं, आयोडाइड्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये रिएक्शन हम यूज करें, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इस रिएक्शन में मैंने एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया किसके साथ, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिफ्लक्सिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट इज रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग इज हीटिंग इन द व्हाट, कंडेंसर, ठीक है। जो भी सब्सटेंस है उसको हम RBF में कंडेंसर लगा के जो है रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं। सो अब इस रिएक्शन को हमने और क्या नाम दिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इनकी जो हैलोजन है वो क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, मीन्स इसके साथ जो और हैलोजन थी वो एक्सचेंज हो जाएगी किसके साथ, आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Ri along with the formation of NaX। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया मिथाइल क्लोराइड और मैंने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। एसीटोन की प्रेजेंस में वही सेम कंडीशन है, एसीटोन की प्रेजेंस में रिफ्लक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ ये रिएक्शन बहुत इजी है, NaCl इजिली क्लियरली विजिबल हो रहा है, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और CH3I जो है वो फॉर्म होगा, CH3I along with the formation of what, NaCl, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br और मैंने इसको ट्रीट किया NaI के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। सेम एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिफ्लक्सिंग हो रही है, ठीक है। यू कैन सी क्या फॉर्म हो जाएगा, NaBr फॉर्म हो जाएगा साइड प्रोडक्ट और CH3CH2I, ठीक है, प्लस NaBr, ठीक है। तो इजिली जो है ये रिएक्शन हो रहा है और किसके प्रिपरेशन के लिए हम स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को यूज करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। किस तरह का रिएक्शन है ये, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है।
मीन्स जो भी हैलोजन होगी अदर देन आयोडीन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी एल्काइल ग्रुप में जो भी हैलोजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमने किसके लिए यूज किया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो जो भी हमारे पास जैसे अदर एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैंने ले लिया जैसे CH3Cl है, इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट किया जा सकता है, या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ ट्रीट किया जा सकता है, Hg2F2, दिस इज मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। सो प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा, जो फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी CH3F, 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे along with the formation of 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड के, इसको ट्रीट किया किसके साथ, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, मिथाइल फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स along with the formation of मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज आल्सो द हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज हो रही है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो रही है। फिंकलेस्टर रिएक्शन में आयोडीन के साथ आयोडाइड आयन के साथ एक्सचेंज हुई थी, और यहाँ पे क्लोराइड आयन जो किससे, या जो भी क्लोरीन है ये किसके साथ चेंज हो रही है, फ्लोरीन के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर CH3Cl है और अगर मैं इसको AgF के साथ ट्रीट करूं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट करूं, रिएक्शन और ज्यादा क्लियर है, यू कैन सी क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, CH3F बन जाएगा, ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड along with formation of AgCl। So this reaction is also known as what, halide exchange reaction, और क्या बोलते हैं इसको, Schwarz reaction भी बोलते हैं, ठीक है। So students, next reaction is Hunsteiker reaction, and in this reaction what we will do, we will treat the silver salt of carboxylic acid with the halogen in the presence of non-polar solvents such as CCl4। तो silver salt of carboxylic acid or COO Ag, it is treated with, जैसे मैंने Br2 के साथ ट्रीट किया, CCl4 की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन होता है। इट विल फॉर्म RBr along with the formation of CO2 and AgBr, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है, एक सिल्वर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म कर रहा है, और एक ब्रोमीन जो है इस R एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जा रही है, क्या फॉर्म हो रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक और एग्जांपल के साथ इसी को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे CH3COO Ag, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सिल्वर एसिटेट बोलेंगे इसको, किसके साथ ट्रीट किया, ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, इसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा CH3Br, साथ में क्या एलिमिनेट होगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी along with फॉर्मेशन ऑफ AgBr, ठीक है। एक और रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह का। अब जैसे CH3 CH2 COO Ag, इसको मैंने ट्रीट किया Br2 के साथ, वही रिएक्शन कंडीशंस, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 Br, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी और सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। So this reaction is also known as what, Hunsteiker reaction, ठीक है। So here you can write in this reaction silver salt of carboxylic acid treated with bromine in the presence of CCl4 to form alkyl halide, carbon dioxide and silver हैलाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिल्वर एसिटेट था, ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, CCl4 की प्रेजेंस में मिथाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है, सिल्वर ब्रोमाइड जो वो फॉर्म हो रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट और है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कौन सा था, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो सिल्वर प्रोपेनोएट है, उसको ट्रीट किया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, CCl4 की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 Br प्लस CO2 प्लस
AgBr, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के ये सारे के सारे मेथड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, दोज मेथड्स विल बी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एरोमेटिक जो आपके पास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, हेलो एरीन्स हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए जो है नेक्स्ट मेथड्स जो है हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। सो उनको भी जो हम वन बाय वन जो वो डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।